Hello guys and welcome back to my YouTube channel. So आज I'll again take a mock sectional DILR and let's see how much I can solve in 40 minutes. One thing that I wanted to say how I want you to use this series कि यार मैं देख रहा हूँ एवरेज व्यू ड्यूरेशन इज समथिंग अराउंड 2 minutes 30 seconds फॉर अ 50-minute वीडियो. तो one thing is first I want you to see how I attempt it, how a student attempts it. Basically I'm not a teacher, I'm not a specialist. तो आई डोंट नो मोस्ट ऑफ द स्टफ एंड मैं छोड़ देता हूँ जो मेरे को नहीं आता. एंड इट्स समथिंग दैट यू कैन सी इन द एग्ज़ाम सिचुएशन एज वेल कि वहाँ आप भी होते कभी. जैसे आपने अगर मैं पिछला वीडियो देखा तो मैंने 5 से 10 मिनट के अंदर एक सेट छोड़ दिया 10 मिनट लगा के. फिर भी मैंने ट्राई टू आई गेट बैक. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाया बट आई एम एक्सेप्टिंग दैट आई डोंट नो एवरीथिंग. ठीक है. सो दैट इज़ वन. सेकेंड, ट्राई टू सॉल्व इट विथ मी. डोंट पॉज द वीडियो चलाओ, म्यूट कर दो, आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ एंड लेट्स सी हु सॉल्व्स फर्स्ट. आई it would be a much better practice because in then you can benchmark the time maybe you should need. For someone like me who is not really associated or in touch with the subject for quite some time, I think I can be a decent benchmark for you but not the best one. That being said, this is PrimeCat 15, the last PrimeCat, and I have not seen the solutions of any sets. मैंने बस एक glance मारा क्योंकि मेरे को सेक्शनल चूज़ करना पड़ता है कौन सा सेक्शनल करूँ. एंड दिस सीम लाइक वन ऑफ द हार्डेस्ट सेक्शनल. आई डोंट नो विच वन कैन आई डू. एंड सबसे पहला ही सामने क्यूब दिख रहा है एंड आई एम नॉट इवन 1% comfortable with क्यूब. So it's already down to 3 sets for me. But anyways, it's 4:14 AM right now and 4:15 से शुरू करते हैं. लेट्स डू इट. विश मी द बेस्ट. I hope everything is visible. So it's 4:15 now. 4:15 है तो 4:55 तक मेरे पास टाइम है. Cubes out of the question only. It's fortunate and unfortunate for me as well because when I rank sets, I don't have to think कि क्या बोलते हैं ना किसको कहाँ रैंक करे. दिस इज़ डेफिनेटली माई फोर्थ सेट. अब मेरे को तो ये आता ही नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट ही. सो अगर मेरे से और कुछ नहीं हुआ तो मेरे को 0 आएगा. Infinity is an identity. The project is करेंसी 20 पैसे 50 पैसे P1 से P6 ABCDEF 6 जन 6 प्रोजेक्ट. ईच ऑफ whom worked on exactly 2. ठीक है. A भी 2 में B भी 2 में. ठीक है. अच्छा 3 इंजीनियर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है. कूल. अमाउंट ठीक है. दिस लुक्स डूएबल. हाउ मच डिड एफ इन अर्न. व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल. मतलब पूरा प्रॉपर सॉल्व नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोजेक्ट 2. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग के नॉट बी. ठीक है. सो आधातर सेट मेरे को जो समझ आ रहा है इट विल बी मेड इन सम वे हो जाएगा. बट देयर आर इफ क्वेश्चन. सो दिस इज नॉट द फर्स्ट सेट आई स्टार्ट विथ. This is either second or third depending on what others are. ABCD activity. ठीक है. This is a number based set. Looks doable. There are direct as well as indirect hints. थोड़ा चैलेंजिंग सा भी लग रहा है बट ठीक है. ठीक है. कुड बी डन. नॉट श्योर बट फर्स्ट सेकंड थर्ड. लेकिन लास्ट वाला देखते हैं. वो ठीक है. टफ बट नंबर बेस्ड है.
ओके दिस कौन स्टार्ट हो गया. I can start with this one, but I'll be very honest, I don't even have much confidence in this one as well. लेकिन इसमें एक इक्वेशन बन जाएगा तो काम हो जाएगा, इतना मेरे को समझ आ रहा है. So if I figure out the equation, things will be done. So let's try to do it. School coordinator make an attendance of 4 students for the month September. So let's say the student are A, B, C and D. The report didn't say exactly how many days each student. Instead, she created pairs of students, added up the days they were in school, and reported those 6 numbers in from highest to lowest respectively. Okay. So see, there are 4 students and pair each किया है, तो 4C2 क्या होता है, 4 into 3 by 2 which is 6. तो हर स्टूडेंट 2 बार अपीयर हुआ है पूरे प्रोसेस में. तो ए का जो अटेंडेंस है कहीं पे 2 बार लिया गया है, बी का 2 बार रेस्पेक्टिवली. It is known that the number of students for which the 4 students, number of days for which the 4 students were absent in September were distinct integers. ठीक है, तो सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं. इन्होंने बोला नहीं है वैसे स्कूल कितने दिन तक चलता है. सो वी कैन अज्यूम कि स्कूल सारे दिन चलता है. तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेजेंट, नंबर ऑफ एब्सेंट, ये दोनों निकाल सकता हूँ. सीम्स लाइक अ बिट ऑफ पेचीदा सेट. लेट्स ट्राई. So see, they have made C1, C2, C6 तक and that is in high to low. ठीक है. So if we do C1, C2, C3, C4, C5, C6, 51, 49, X, Y, Z, 40. अब इन सबका अगर एडिशन कर दोगे, ठीक है, तो मान लो जैसे क्या होता है, 6, सबसे पहली बात 6 सेट कौन कौन से बनेंगे, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी. तो ए 3 बार आ रहा है, बी 3 बार, सब 3 बार आ रहे हैं, राइट. सो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 140 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड. सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 140 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3. सो 12. हाँ, so this is 3k plus 1. Why am I saying this? So 140 जो है that is not divisible by 3. 141 is divisible by 3. Right. So जो ये number है x plus y plus z, that has to be a multiple of 3 plus 1. I hope this is very clear. This is the number of days that are present. And total D is 120 है. ठीक है, टोटल मतलब हाँ 30 डेज पर पर्सन प्रेजेंट हो सकता है, तो टोटल 120 है. चलो, और x is greater than y, y is greater than z and z is greater than 40. ठीक है. So let's write this as x is greater than y, y is greater than z, z is greater than 40. So that z is greater than equals to 41, y is greater than equals to 42, x is greater than equals to 43. 40, 80, 121, 127. 127 is the minimum number that it can be, and this is fitting into 3k plus 1. So if we put it here, 140 plus 127, which is 267, और इसको काटोगे 89 डेज आ रहा है. ठीक है. So this is the minimum, and what can be the maximum they can go to? 127, or maximum can be 48, 47, 46. So 48, 47, 46, 40, 80, 120, 128, 135, 141. I don't think this is fitting, क्योंकि 3k plus 1 होना चाहिए. स्टिल ठीक है, अगर मैं 140 लूँ तो चलेगा.
So the range is 127 to 140 and 140 कितना होगा, 280 होगा, 140 भी नहीं चलेगा यार, 280/3, 9 से 27, 93, 1/3, तो 279 is what we are looking at. So 139. Okay, 139 is not divisible. No. हाँ 139. 127 से 139 is the range that we are looking at. Let's go. तो अगर 139 हो जाएगा, so 139, तो 279 divided by 3 will be 93 days. So 89 से 93 days is the पूरा probability. Great. Which of the following can never be the number of days on which? Okay. What is the value of z? अगर z का वैल्यू आ रहा है इसका मतलब it can be anyone between 41 to 46. So 48, 47, 46 is not possible. 47, 40 नहीं, बट ऐसे हो सकता है ना कुछ एडजस्टमेंट हो जाए. ठीक है, 127, 12 और बढ़ाना ना, तो 4 4 4. वैल्यू ऑफ z कैसे निकलना है? इफ 1 of xyz is 45. ठीक है, this I'll just try 2 more minutes. I think I started at 10 minutes over and I could not solve anything of it. I have 30 minutes left. This is the value of z. तो चारों लोग जो लोग एब्सेंट हुए थे, इट इज़ ऑल्सो नोन द नंबर ऑफ डेज फॉर विच ऑल दिस वेर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स. ठीक है, सो इसका मतलब अगर मिनिमम भी ले तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, तो मैक्स इट कैन गो टू 110, जिसमें ये लोग कंबाइंड प्रेजेंस डाल सकते हैं. But we are looking at a minimum of 1. We are looking at a maximum of 93. मतलब 17 दिन तो इन्होंने एब्सेंट किया ही किया है. नहीं होगा मेरे से. I'll let it go. I don't know what went wrong there. We'll come back if we have time. Let's move on to the next one. So we are 12 minutes down, 20 minutes left. 6 point ABCD. ठीक है.
रेस, साइकिल और स्विम, रैंक 1 to 6। ठीक है, तो उसके हिसाब से स्कोर हो जाएगा। सो टोटल स्कोर विल बी हियर। सो FD और ये 10 एक ही बार लाए हैं। हाँ, वो लोग फर्स्ट रैंक सिर्फ एक एक बार ईच आए हैं। नन ऑफ देम गॉट सेकेंड रैंक इन मोर देन वन एक्टिविटी। इसका 25 था, तो अगर एक में 10 है तो दूसरा में 15 होगा, विच इज 7 + 8 या 6 + 9। ठीक है, तो 4, 3 रैंक, 5, 2 रैंक। ठीक है, none of them got second rank in more than one, or second be greater than equal to 1, sorry, less than equals to 1. D was ranked ahead of at least 2 persons in cycling. ठीक है, D got 10 points in swimming and 5 in running. एक सेकेंड, रेस है ना, 3 ही एक्टिविटी है ना। ठीक है, रनिंग, D got this and this, at least 2 persons in cycling. So D was 1, 2, 3, 4, इन चारों में से रैंक है, तो इसका 10, 9, 8, 7 इसमें से कुछ स्कोर होगा। ठीक है, B केम लास्ट इन स्विमिंग, तो लास्ट 6 रैंक से तो 5 मार्क्स। C was immediately ahead of A but immediately behind F। ये बाद में देखते हैं। 1 person was ranked third in a pair of activities। ठीक है, दिस के नॉट बी रैंक थर्ड रैंक मतलब 8। दिस के नॉट बी 3, दिस के नॉट बी 3। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3। C was immediately ahead of A, तो रनिंग में C was immediately ahead of A but immediately behind F in running, तो 6, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 1, these are the possible ranks. F was immediately ahead of C, swimming. Sorry, cycling, तो इसमें भी सेम होगा। ठीक है, सो साइकिलिंग में नथिंग अबाउट D इज गिवन। रेसिंग में D गॉट 5 पॉइंट्स, इसका मतलब ही केम 6, सो दिस इज नॉट अ पॉसिबल केस। सो F कैन बी इन रेसिंग 1, 2 or 3, C can be 2, 3 or 4, this can be 3, 4 or 5। Immediately cycling में, so he cannot be 10 anymore यहाँ पे, और यहाँ पे एक 10 आना ज़रूरी है। So this sounds pretty
डायरेक्ट। अगर एफ को एक 10 मिलना ज़रूरी है, ठीक है, तो बाकी 15 बचेगा। यहाँ पे वो 10 नहीं आ सकता, इट कैन नॉट बी 1, ठीक है। यहाँ साइकिलिंग का पता नहीं, देखना पड़ेगा, ठीक है। साइकिलिंग में बी कैन बी आइदर 1 2 3 4, एफ कैन बी 2 3 4 5, सी कैन बी 3 4 5 6, ठीक है। One person was ranked third in a pair of activity, another person was ranked fourth in a pair of activity, and yet another ranked person fifth. अच्छा, ठीक है। So एक जन 3 2 बार, 4 2 बार, 5 2 बार। अगर बंदा 5 आ रहा है तो उसको 6 6 मिल रहा है, 4 2 बार हो रहा है तो 7 7 मिल रहा है, 3 2 बार हो रहा है तो 8 8 मिल रहा है, ठीक है। So the person cannot be F, इनमें से एक भी, बिकॉज 2 बार अगर ये हुआ 25 कैन नॉट बी द टोटल, सो ये 2 बार 3 नहीं आ रहा, ठीक है। द पर्सन कैन नॉट कम फर्स्ट है, सो एफ हैज़ टू बी फर्स्ट है बिकॉज वी हैव सीन एफ कैन बी आइदर सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। सो दिस इज if f got 10 which is first, c will get second which is 9, and a will get third which is 8, ठीक है। 7 6 6 7, ठीक है। अब अगर किसी को 2 बार 7 आ रहा है, सो 25 के लिए 2 3 4 5, हेयर ऑल्सो 2 3 4 5। सेकेंड एक ही बार आ रहा है, एक है उससे कम, एंड 5 मार्क्स सेकेंड आया तो 9 आएगा ना, ठीक है। एंड हेयर ऑल्सो सेकेंड आया तो 9 आएगा। What is the minimum final score of any of the 6 participants? Who is the winner in triathlon? So see, D cannot be the winner because D cannot reach 25. F can be, it can reach 24. No, F is 25. Let's see C. So C has got, let's say अगर हायर एंड पे भी लेके चले 7 5 12 और 10 नहीं सॉरी सी का 9, और यहाँ पे थर्ड रैंक इज़ अगेन 8 9 8 17, और यहाँ पे भी अगर एक बार 8 और ले ले 9 8 17 9 26, सो सी कैन बी ए पॉसिबल इफ़ इट इज़ 9 एंड दिस इज़ 8। और ए के केस में ए इज़ 10 10 एक बार आएगा, ओके राइट। सो सी ए हैज़ टू बी 10 1, तो ए 10 यहीं आएगा, सो नो वन कैन बी 10, सो दिस कैन बी कैनॉट बी 1, ठीक है। साइकिलिंग में बी 1 नहीं हो सकता तो एफ भी 2 नहीं हो सकता और सी भी 3 नहीं हो सकता, ठीक है। तो सी को मिनिमम 4 पे जाना होगा। फोर्थ रैंक इज 7 9 एंड 7 16 और 9 25, तो सी ऑल्सो कैन नॉट बी द विनर। ए माइट बी द विनर, 18 हो गया ए का, 7 के लिए उसको फोर्थ रैंक आना होगा, and the ranks that are open are 2 3 4 5. ठीक है। सो ए अगर सेकंड आया तो उसको 9 मिलेगा, 9 18 9 27, तो ए और एफ के बीच में इससे चॉइस, आई क्लिक ए फॉर नाउ बट आई मूव ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द फाइनल स्कोर ऑफ एनी, ठीक है एक सेकेंड, आई शुड बी यूजिंग दैट 3 3 4 4 5 वाला। सो इसमें लिखा है 1 person was ranked third in a pair of activities. So this person cannot be ranked
3-3. This person also cannot be ranked 3-3. This person also cannot be ranked 3. इसमें क्यों 3-3 नहीं हो सकता? इसमें 4-5-6 ही बचा. इसमें 3-3 नहीं हो सकता. इसमें 3-3 नहीं हो सकता. So the only person who can be ranked 3-3 is this person. And 3-3 में आएगा 8-8. So this gets 8. This gets 8. तो स्विमिंग में 3 कोई नहीं हो सकता. ठीक है, 3 नहीं हो सकता. 3 नहीं हो सकता. 3 नहीं हो सकता. तो ये तो ना 3 होगा, ना 4-4 होगा, ना 5-5 होगा. ठीक है, ये भी ना ही 3-3 होगा, ना ही 4-4 होगा, ना ही 5-5 होगा. ये 3-3 नहीं हो सकता. दिस ऑलरेडी 6th रैंक. सो दिस इज 4,5. 3-3 ये हो नहीं सकता था. दिस कैन बी 4-4, not 5-5. This can be both 4-4, 5-5. This is 6th rank, this is 1 rank. So this is neither 3-3, neither 4-4, nor 5-5. This is 3-3. ठीक है, तो आ गया 4th यही होगा हमारा. This is done. I think the set is open now. And this will be 5-5. So 5th rank मतलब 6-6 marks. And 4th rank मतलब 7-7. So this becomes 6. So अगर B is 4th rank in cycling, B is 4th rank, तो C is 5, F is 5, F is 5th rank मतलब 6 मिलेगा इसको. F is 4th rank of 6. So this automatically becomes 9. So this automatically becomes 7. And बट 6-6 दो बार तो हो नहीं सकता. तो एक मिनट, सी यहाँ पे 5 हो जाएगा. तो 7-8-6. सो दिस विल बी 9. सो अब ऐड करते हैं. 8-8-16 6-22, 9-5-14 10-24, 9-5-14 6-20, 7-4 10. So we don't have a clear winner यार. There is something that is going wrong. सिक्स सिक्स ये हो गए यहाँ पे सेट. सो 6 अब 6 इज मीन्स it's 5th rank. If C is 5th rank, F is 4th rank, means 7. B has to be okay. We have 15 minutes left and I think I'll be able to do this, but मेरे को फिर से rework करना पड़ेगा. And I don't think it's the right time to take another set. So we'll just see what went wrong.
Let's redo it once again. D was rank of at least 2% in cycling. ठीक है. D got 10 points in swimming and D got only one time, so this goes. ठीक है. And 5 in running. ठीक है. C was immediately ahead of A but behind F in running. ठीक है, so this is the rank they can have in running. F was immediately ahead of C. ठीक है, ये दोनों भी सही है. So रेसिंग का कुछ दिया था. ठीक है, रनिंग का दे रखा है. रनिंग में ठीक है, D got 5 points in running. 5 in running, but D was 6, so A can be minimum rank 5, 4, 3. If A is 5, 4, 3, 4, 3, 2, and F is 3, 2, 1. Similarly, in cycling, F can be 2, 3, 4, 5, and F cannot be 1 here, so F has to be 1 here. So इसलिए यहाँ पे इसको 10 दे दिया था. So C will be 9. This is done, and A will be 8. This is also done. तो ये हो जाएगा 6/7, ये हो जाएगा 7/6, which is yet to be figured out. ठीक है, ये हो गए 2, 3, 4, 5. Here also 2, 3, 4, 5. Both the possibilities are there. ठीक है. B came last in swimming, ये भी दिया हुआ है. C was first in at least one of them. ठीक है, C cannot be first in swimming as well. C has to be first here, which is also done. ठीक है. E का 8 पॉइंट कहीं से आ रहा है क्या, पता नहीं. तो E का 8 पॉइंट भी अभी हम लोग को देखना होगा. अब साइकिलिंग में क्या दिया है? साइकिलिंग में F कैन बी 2, 3, 4, 5. B कैन बी 1, 2, 3, 4. B cannot be 1 because cycling in 1. तो F cannot be 2. तो F can be, B cannot be 1. तो F can be 3, 4, 5. And C can be 4, 5, 6. 4, 5, 6. अब इसमें D has to be 1, 10. तो ये भी यहाँ चला गया. So no one can be 1. तो 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. These are the only rank left to be filled up. And यहाँ पे 4, 5, 6, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 2, 3, 4. हाँ ठीक है. अभी इसमें भी कुछ था. This is 10, we need 15. So we can have all the possibilities there, not a problem. I have 9 minutes left. One person was ranked third in pair of activities. F was ठीक है. I think रनिंग का काम हो चुका है. साइकिलिंग का, is there anything we can figure out from here? So can C be 4? Yes. अब इसमें क्या बोला है? यहाँ पे तो C हो गया सेकंड. ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 1. So this cannot be a pair of 3, 3, 4, 4, 5, 5.
Here also this cannot be a pair of 3 3 4 4 5 5. A also cannot be a pair. A can be a pair of 3 3, by the way. So I think that is where I went wrong. A can be a pair of 3 3. This cannot be a pair of 3 3. This can be a pair of 4 4. This can be a pair of 4 and 5 both. यहाँ पे this cannot be a pair of 3 4 5 anything. And this can be a pair of E का क्या हिसाब है साइकिलिंग में? E का कुछ लिखा है क्या? कुछ हिसाब नहीं है. ओके, ठीक है, हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन है जिससे हम लोग को फिगर आउट करना है. So this can also be a pair of 3 3 4 4 5 5. टफ है भाई, टफ है. क्वेश्चंस का हेल्प लेते हैं. Which of the following can be correct order of participants in final? Can be. ठीक है. So F is one of the highest, so F has to be either the second or first. So this has to be there. Which of the following statement can be true? There's a tie between C and E in final scorecard. अभी मैं नहीं देख सकता. The difference between the score, B stood second last. So B अगर 5 आया, let's see, we'll explore that possibility. So I think the winner is A. Winner is definitely A. Which of the following can be score of any of the participants? 20, 15, नहीं. Fuck, why can't I figure out cycle वाला है? पिछले बार तो हो गया था. So D also cannot be fourth in cycling, क्योंकि fourth either of B, F या C में से कोई लेगा. तो 10, 15, 24, 23. चार मिनट और. 23 can be there. I really messed up this one. What is the minimum final score of any of the 6 participants? ये भी निकल जाएगा. Cool. 4 4 के दावेदार 2 हैं. 5 5 के दावेदार 2 हैं. 3 3 के भी दावेदार 2 हैं. It's quite tough to figure this out, यार. What am I missing? There's something I'm missing that I'm not able to see. So if E goes 4 4, that is 7 7, and then it has to go 6. 7 7 and then 6. अगर ये 3 3 हुआ तो 16, 6 22 23. 5 5 हुआ तो 6 6 12.
7, 19, 18. It'll be 18 to 23. I don't know. Where did I mess this up? Unable to find. Minimum score, I'll go with 3, 3 and this. So if I go by that, 4, 4, 7, 7, 12, 5, 17. What can be the minimum score? 7, 7, 14, 5, 19. 19 can be the minimum score. Cannot be the final score. 21 I don't think can be anyone's score. I'm yet to explore a possibility. नहीं 21 नहीं हो सकता लगातार. ऐसा कहीं लिखा है क्या? अरे कोई पॉइंट तो मैं मिस कर रहा हूँ. There are no ties in any of the activities, but हाँ ठीक है. 777 तो नहीं हो सकता, तो 4 4 नहीं हो सकता यहाँ पे. दिस कैन बी 3 3 और 5 5. अगर ऊपर 5 5 में 7 7 12 19 19 कैन बी देयर. 4 4 8 16 14 9 23 5 5 और 6 6 12 21 20. तो 3 3 भी कोई लेगा ना. यहाँ पे 4 4 भी कोई लेगा. सो 4 4 इसमें, तो 4 यहाँ भी नहीं हो सकता. और 4 इस केस में भी नहीं हो सकता. और दिस इज व्हाट आई वाज मिसिंग. गेट इट. 5 5 अगर कोई ले रहा है, 5 5 यहाँ होगा, 5 5 यहाँ होगा. We cannot be here. I think I'm done with my time. Let's see. बहुत ही खराब. Disastrous. Oh, damn. Okay, we'll jump to this one first. Who was the winner? A is the winner. Correct. Which of the following cannot be? I think I marked 22 and went away, no? 22, I don't know what I marked. 21, अरे 22 ही मार्क किया था, पता नहीं why did I change. Which of the following can be the winner? A. ठीक है. I think I should have done this set first. इस बार मैं set selection में problem हुआ. I'll show you the answers of all the set. Just wait a second. This was a very bad one for me. But yes, I'm fine accepting the fact that कभी कभी खराब जा सकता है. So one by one, if you want, you can see the solutions. ठीक है. This is the set. नीचे solution. I'll just give you 10 seconds to glance. Cubes looks
ईजी टू मी, मैम मेरे को आता नहीं है कॉन्सेप्ट, बट इसका सोल्यूशंस बहुत ही छोटा छोटा है मैम। जिसको क्यूब अच्छे से आता है वो 5 से 10 मिनट के अंदर इस सेट को निपटा देता। ठीक है, नाउ दिस वन इफ यू वांट यू कैन सी। ओवरऑल इट लुक्ड लाइक अ वेरी टफ सेक्शनल टू मी। पता नहीं, मे बी इतना रात को करने पे भी दिमाग भी काम नहीं कर रहा, तो वो भी हो सकता है, बट ठीक है, आई वुड नॉट से दैट आई वॉज एट माई बेस्ट। I think I got this. I think I got this. वाह, बहुत ही लेट, बट ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सो सी, इफ यू सी दिस वन, ठीक है, there should be these numbers to make sure that the possibility of 25 happens. तो अगर 3 3 4 4 5 5 ये सारे इन दो में ही सिमट गए, एज इन साइकिलिंग। सो 3 4 5 नीचे के दोनों एफ में पॉसिबल नहीं होगा, विच इज़ नॉट द राइट केस। तो 3 4 और 5 में कम से कम एक को तो केस को ऐसा होना होगा, I think not even one. There should be two cases like this such where 3 is distributed in A and the first and the last one, or the first and the second one, ताकि last one वाला बचा रहे. So if we see 3 3 का possibilities में, here if we take 3 3 पूरा, ठीक है, and here if we take 4 4 पूरा, then the whole this one get messed up. So 3 3 के लिए मेरा possibility सिर्फ A होगा. सिमिलरली इफ़ वी टेक 4 4 हेयर, और अगर मैंने 3 3 इधर ले लिया, तो यहाँ अगर 3 हुआ, 3 मीन्स 8 एंड हेयर इट मीन्स 7, तो 4। तो अगर यहाँ से 4 गायब हो गया, लेट्स से इधर से 4 गायब हो गया, तो दिस कैन नॉट बी 4 4, देन दिस कैन बी 5 5। अगर ये 5 5 हुआ तो हमारे पास 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, क्योंकि 4 4 इसमें नहीं होगा, 4 4 मेरे को लग रहा है इसमें होगा, 4 4 5 5 का पॉसिबिलिटी कूल। सो अगर 3 इधर चला गया, सो ओके 4 इधर से चला गया, सो वी कैन नॉट हैव 3 4, वी कैन ओनली हैव 2 and 5। सो इफ़ वी कैन ओनली हैव 2 and 5, सो यहाँ पे 2 होगा विच इज़ 9, यहाँ पे 5 होगा विच इज़ 6। सो दिस इज़ द केस, सो 2 यहाँ हो नहीं सकता, 2 यहाँ हो नहीं सकता, 2 यहाँ तो वैसे भी 8 हो रहा है, तो 3 हो नहीं सकता, ठीक है। सो 3 3 इज़ डन। यहाँ पे क्या आया है, 2 और 5 आया ना, सो 5 कैन नॉट बी हेयर, 5 कैन नॉट बी हेयर। सो इफ़ वी वांट अ केस ऑफ 5 5, it has to be here, this has to be 5 5, जहाँ पे ये 5th रैंक होगा एंड ये 5th रैंक होगा, so 6 and 6, and this cannot be 5, so this has to be 7, which is the 4th rank, and this is 7, which is the 4th rank. So yeah, we got the answer pretty late. बट यू कैन सी, अगर इस हिसाब से चले तो व्हाट कैन नॉट बी द फाइनल स्कोर भी निकल आता है 22 से। आई डोंट थिंक वाई आई डेविएटेड, दिस इज़ लॉजिकल, ठीक है। ये देखते हैं ये वाला हम लोग कर पाते कि नहीं। आई हैवंट सीन द सोल्यूशन, दिस अ टाई बिटवीन सी एंड ई इन फाइनल स्कोर बोर्ड।
सो सी का मेरा 9, 7, 7, 14, 9, 23 आ रहा है. ई का 6, 6, 12, 23 नहीं आ सकता. आई डोंट थिंक 1 होगा. सो 1 कैनॉट बी देयर. तो ओनली 3 शुड बी. बट 1 सब में आ रहा है. तो दिस ऑल्सो मेक्स इट टफ फॉर मी टू थिंक कि ऐसा क्यों नहीं. तो क्या 5, 5 का पॉसिबिलिटी ऊपर में भी है. So I don't think C will be then 4, 4. 4, 4 ऊपर वाला ही होगा. The difference between total score and of B and E can be an even number. ये भी हो सकता है. B stood second last 19. This is also possible. B second last हमने शायद मार्क किया था ना कहीं यहाँ पे. तो if we see this, B cannot be second last according to this one. See, B का स्कोर क्या आ रहा है? 19 आ रहा है. Can we have someone? B मेरे हिसाब से लास्ट होना चाहिए. सेकेंड लास्ट भी नहीं, लास्ट होगा. So let's see what is this. Both 1 and 2. B last आ रहा है क्या? B is last with a score of 19. Horrible भाई, horrible. Let's see where I went wrong here. हाँ, वैल्यू ऑफ Z A B C D. ठीक है, ठीक है. एक सेकेंड, ये इन्होंने कैसे किया? ABCD नंबर ऑफ डेज. ठीक है, अच्छा ठीक है. ये कौन सा किसको असाइंड है ऐसा तो लिखा नहीं है. A+B. यार आई डोंट अग्री विथ व्हाट दे हैव डन. या तो मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ. ओके आई गेट इट. ओके आई गेट इट, आई गेट इट. सो ABCD को अगर इस तरह से देखा जाए, ठीक है, A is greater than B, B is greater than C, C is greater than D, which has to be there because the total number of days present were different. तो एक दूसरे से बड़ा हो गए. So if there's a highest number of days that someone is present, so that has been the sum of highest number A plus B. Lowest के लिए C plus D and इसके लिए A plus C because C है. Okay, this is where I missed it. This could have done the thing for me. ठीक है, I get my mistake. Simple like conceptual error. I think this was a total selection mistake on my side. ये मेरा फर्स्ट सेट अब लग रहा है आइडियली होना चाहिए था, बट आई डोंट इवन नो इफ इट शुड बी. आई थिंक आई वुड टेक सम टाइम टू सॉल्व इट आउट इन फ्रंट ऑफ यू and see if it should have been my first set or not. Let's see. I hope I get proven wrong. और भाई ऐसा मेरा आई होप वाला तो सिचुएशन नहीं होना चाहिए, बट ठीक है. I can be wrong too. Well, that's quite a humbling experience. ठीक है, let's do this.
So Infinity, a small country called Corpus, group A, only 50-20, ठीक है ना, P1 P2 A B C D E F. ठीक है, P1 2 3 4 5, ये 6 प्रोजेक्ट के हिसाब से हो गया. द अमाउंट पेड यहाँ पे आ जाएगा सबके लिए, बिकॉज रुपये का बात हुआ तो अमाउंट भी आना ही चाहिए. द अमाउंट इफ रिसीव्ड बाय ABCDEF वेयर, ठीक है. Is this not visible? Sorry. Amount visible now. So I've started this set as at 5:12 समझ लेते हैं. It's 5:14, so 950, 900, 850, 800, 700 and 450. The payment for the project, अच्छा ठीक है, चलो प्रोजेक्ट पेमेंट्स आ गए हैं गाइस. 750, 1200, 1100, 700, 500, 400, 1100, 700, 500, 400. Except for one project, all the project had at least 2 engineers working on them. ठीक है, सो 2 3 4 5 6 में से एक है जिसमें ध्रुव काम कर रहा था, एंड at least 2 working on them except for 1. ठीक है, ठीक है. अच्छा, मेरे को वापस पढ़ना पड़ेगा ना. हर इंजीनियर 2 प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो ध्रुव ने 2 प्रोजेक्ट पे काम किया. तो अगर ध्रुव का इनकम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ध्रुव का इनकम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 800, and Dhruv has worked in either 4, 5, 6. Because if I assume Dhruv has alone worked in, क्या बोलते हैं ना, Dhruv has alone worked in one of these projects, so उसको उस प्रोजेक्ट का पूरा पैसा मिला होगा. और अगर मान लो ध्रुव ने प्रोजेक्ट 4 पे काम किया, उसका टोटल भी अर्निंग 700 है, ये भी 700 है, सो ही कैन नॉट वर्क ऑन अनदर प्रोजेक्ट, सो इट हैज़ टू बी एटलीस्ट ग्रेटर देन 700. सो ध्रुव गेट्स 950, 900, 850, 800, ठीक है. एंड ही इज़ आइदर इन 4, 5, 6 फॉर श्योर. बाकी सब में एटलीस्ट 2 इंजीनियर्स. कूल. सो देखो, एटलीस्ट 2 इंजीनियर्स का मतलब क्या है कि टोटल 12 टिक्स होंगे, ठीक है. मान लो किसी एक प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही टिक हुए, तो 11 टिक्स लेफ्ट एंड देयर आर 5 प्रोजेक्ट्स लेफ्ट. हर प्रोजेक्ट में एटलीस्ट 2 टिक्स है, तो कोई एक प्रोजेक्ट है जिसमें 3 टिक्स होंगे टू बैलेंस इट. आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर. तो कोई एक प्रोजेक्ट है जिसमें 3 लोग काम करेंगे. The payment for each of these projects was equally distributed among the engineers working on it. Very crucial thing.
सो लेट्स से अगर ध्रुव ने अगर 700 वाले में काम किया तो मैक्स टू मैक्स उसके पास 250 और बचेगा, तो वो 5 वाला में काम करेगा, ठीक है, और वो 4 वाला पे काम करेगा, लेकिन वो, हाँ, वो 5 और 4 में ही काम कर सकता है फिर. सो इफ ही वर्क्स इन 4, if Dhruv works in 4, then the second project will be 5 or 6. If Dhruv works in 5, so he earns 250. ठीक है, so now he can earn up to 700 max to max, और 600 550 मिनिमम, तो 1100 वाले पे वो काम कर सकता है, राइट. 250 तो 1100, 1200. So then the next will be 2,3. And if he works in project 6, he earns 200. So at least 600. So the next is 2. So I hope I have got this right. ध्रुव के लिए. So Dhruv can work in which projects? Dhruv can work in 2 and 6. Dhruv can work in 2 and 5. Dhruv can work in 3 and 5. Dhruv can work in 4 and 5. Dhruv can work in 4 and 6. These are the only possibilities for Dhruv. ठीक है. B, E and F worked on a project together and Ekansh earned more than Farid. ठीक है. E is greater than F, so F cannot be 950 and this cannot be 450. ठीक है. And B, E, F worked on a project together. B, E, F together. ठीक है. And that cannot be 4, 5, 6, which can be either 1, 2 or 3. अगर तीनों में हुआ है so it can be 1, 2 not 3, because 3 में equal split नहीं जा सकता, right? So B, E, F can be 1 or 2. 3 में equal split जा नहीं सकता. 4, 5, 6 में बोला है अच्छा, वैसे हो सकता है, नहीं उन सब में भी नहीं हो सकता, बिकॉज 4, 5, 6 इज ऑल्सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. तो तीनों में अगर इक्वली बढ़ रहा है सो इट हैज़ टू बी मल्टीपल ऑफ 3. 10 minutes into the set. अब है 900 RP and work with Bharat on one project. अब है 900, so 900 goes off. So if he is working on 4, 700 to 900 के लिए 600, 4 and 6 off. If he is working on 250 तो 300, 650, 1300 नहीं हो सकता. If he is working on 200 तो 700, ठीक है. 4, 6 as a possibility is gone. और यहाँ भी ये 900 भी नहीं हो सकता. 850, 800, 850, 800, 700. E और F को मिनिमम इफ वी सी तो यहाँ से 250 से 400 मिलना ही है. 250 to 400 has to be range है, ठीक है. A on 900 P and work with B on one project.
ए और बी एक साथ काम करेंगे एक प्रोजेक्ट में. Charan earned the highest and only one person earned less than Dhruv. Charan earned the highest, so this is 950. This is gone. Only one person earned less than Dhruv. So Dhruv is this. ध्रुव 700 वाले में आया भाई. ध्रुव को 700 मिला. So this changes the whole equation. ठीक है. So this person cannot get 700. तो 700 चला गया, 950 चला गया, 900 चला गया. तो इसके लिए भी 850 या 800. So this is very clear. If E is greater than F, so F, wait, इसमें क्या दिया है? E earned more than F. So if E is greater than F, so E has to be 850. Wait. E is greater than F. ठीक है, एक बार वापस से देखना पड़ेगा मेरे सबको. The payment for each of them, B in F, E is greater than F. 900 चला गया, 950 चला गया, 700 चला गया. So E is greater than F. So E can earn between 850, 800, and he can earn between 800, 450, and this can be 850, 800, 450. ठीक है. D अगर 700 कमा रहा है, so D also cannot do project 4. So D has to do 5 या 6 में से. अगर D 6 कर रहा है, so he earns 200 from 6. Rest is 500. 1000 का कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं. If D does 5, then he gets 250. अब इसको 450 कमाना है, which is also not a possibility यार. Okay, नहीं, sure. So D cannot do project 4, that is for sure. If D does project 6, so he earns a total 400, and he has 300 more to go, तो वो 600 का project करेगा, which is not there. So D does project 5. तो उसके पास 200 रहेगा, तो this. ठीक है. तो D का 200 वहाँ चला गया. Cool. How much did Farid earn? ये तब तक नहीं पता. एक सेकंड में क्वेश्चंस पे चले जाता हूँ मैं यहाँ पे. 14 minutes हो गए into this, but ठीक है. Seems like it is open. What is the highest number? नहीं. Which of the following statement is true regarding project 2? ठीक है, मेरे को देखने दो. और कुछ है. C earned the highest. This Abhay earned 900. Work with B on one project. Work with B on one project. So now let's analyze. ठीक है, इसका 200 रुपया बचा है. ठीक है. If the person A works on this, तो 1400 का कोई प्रोजेक्ट नहीं है. If the person B works on, cannot work. Now let's say anyone who is earning 850, if he works on it तो 650 उसको और चाहिए होगा. 1300 का प्रोजेक्ट नहीं है तो वो भी है. If someone is earning A, तो ये हो सकता है 800 वाला इसमें काम कर सकता है,
और 450 वाला भी इसमें रियली काम नहीं कर सकता मुझे लगता है। यार 450 वाला को भी तो 400 और 500 में काम करना होगा। इसका कुछ तो है, एक्सेप्ट फॉर वन प्रोजेक्ट ऑल प्रोजेक्ट हैड एटलीस्ट 2 इंजीनियर्स वर्किंग फॉर देम। नहीं तो 450 वाला 3 में भी काम कर सकता है। ठीक है, तो जिसने 450 अर्न किया है वो 750 में काम करेगा, तो उसको डिवाइड बाई 3 मिलेगा। ठीक है, और वो 400 वाला में काम करेगा, तब उसका टोटल बनेगा 450। सो कैन बी 450? मोस्ट सर्टेनली yes, B can be 450. ठीक है, सो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी, इन दोनों में से एक होगा, और जो भी 450 वाला होगा वो 750 वाला भी होगा। दैट इज ऑल्सो वेरी मच श्योर। ठीक है, हाउ मच डिड फरीन अर्न 800 या 450 में अभी भी श्योर नहीं है। द पेमेंट फॉर each अगर ए ने 900 अर्न किया है, रुको सी से जाता है, अगर सी ने 950 अर्न किया है तो ही हैज़ टू डू अ टोटल प्रोजेक्ट ऑफ 1900। 1900 कैसे हो सकता है? 1200 और 700 हो सकता है, 1100, तो 1200 और 700 वाले में सी ने काम किया। सिमिलरली इफ ए हैज़ वर्क, तो उसको 1800 में काम करना है, तो वो क्या हो सकता है? 1100 और 700 हो सकता है। 1100 और 700, तो 1100 और 700। आई होप दिस इज क्लियर। अब 4 में और कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि 2 जनों ने काम कर लिया है। ठीक है, तो ए और बी ने टुगेदर एक साथ एक में काम किया, तो बी और ई ने टुगेदर इसमें काम किया। अगर ई ने 1100 वाले पे काम किया है तो उसको मिलेंगे 550, सो इट कैन नॉट बी 450, सो 450 हैज़ टू बी दिस। तो अगर उसको 550 मिल रहे हैं तो अब उसके पास ऑप्शन है 300 और 250। 500 वाला फिल हो चुका है तो नहीं, 300 का तो है ही नहीं। तो हमें एक आंसर तो मिल गया कि एफ हैज़ अर्नड 450। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 20 पे? हमको क्या पता भाई, ओनली 20 एंड 50 आर अवेलेबल। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल में कैसे निकालेगा?
तो इसका टोटल कितना हो रहा है देखते हैं. 1000, 2000, 3000, 3900, नहीं 1000, 2000, 3000. So 4600 by 20. So 230 can be the maximum number of this possible. Which of the following statement is true regarding project 2? तो देखो हमने क्या निकाला था, जो भी 450 पे काम कर रहा है वो 750 पे काम कर रहा है और 400 पे काम कर रहा है. तो बी, ई और एफ तीनों ने इस पे काम किया. अगर इसमें 250 और इसमें 550 तो इससे हो जाएगा 800. तो ये हो जाएगा 850. बी, ई एंड एफ ने इसमें काम किया, ठीक है. इसने 850 में से 250 अर्न कर दिया तो 600. दिस वी आर डन. दिस शुड हैव बीन माय फर्स्ट. फिर मेरे को 20 मिनट्स लग गए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोजेक्ट 2? प्रोजेक्ट 2 में सी और ई ने काम किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ द नंबर अर्न बाय भारत. 800 रुपये कमाए हैं तो 35:2 हो सकता है. 15 into 20, 300, 400, 800 हो सकता है. 180 और 200, 180, 200 ये नहीं हो सकता. तो ए को मिल सकता है, बी को मिल सकता है, डी को मिल सकता है. ए बी डी मोर देन 2. What is the minimum final score? Let's see the answers. 450, ठीक है. What is the highest number? 215. कैसे है भाई, ठीक है. First let me see have we found it right or not. Project 1 B, E and F. Project 2 C and E, ठीक है. Project 3 A and B. Project 4 A and C. Project 5 D. Project C D and F. ये तो सही आया पूरा. पेमेंट भी आ चुकी है. ठीक है. टू मैक्सिमम वी नीड टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ 50 पैसा में. अच्छा ठीक है, मैं समझा. तो 50 रुपीज़ का नोट तुम्हारा तीन 50 रुपीज़ का नोट जाएगा ही जाएगा. सो 4500. ठीक है, माय फॉल्ट. ये मेरा सही हुआ है. फिर तो सब सही होना चाहिए. भी 9:2 सही हुआ. एंड दिस इज मोर देन 2 अगेन सही हुआ. टफ लग. ये वाला सेट हो जाता और दूसरा वाला सेट आधा हो जाता. 1.5 सेट्स मे बी 2 सेट हो जाता अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से करता. दिस शुड हैव डेफिनेटली हैव बीन ऑन माई लाइक दिस शुड हैव डेफिनेटली बीन डन. 2 सेट होना चाहिए था इसमें. सो आई होप this serves as maybe reminder or maybe not reminder, I would say maybe an eye-opening thing, not just for you but for me as well, कि हाँ थोड़ा सा we can always go downwards, but it's fine. I think it's fine to accept that we are humans and hopefully ये एग्ज़ाम में ना हो किसी के साथ. We don't get a lot of time in exam to get back, and this can be a huge setback before quants. So if you are here till now, thank you so much for being here. I have reflected back on my problems, but I would definitely and strongly urge you to solve this sectional. It had good sets. इसमें your logic, your numbers, LR, everything will be tested very very beautifully. काफ़ी अच्छा था ये. So maybe try to give it a shot. I'll upload the file in my group so that you can take it from there and maybe use it. Thank you so much for being here. कल फिर से एक दूसरा sectional.
new day, so hopefully some new good news for me as well. Better than better score. But thank you so much for sticking around, and I hope your exam goes well. I'll be there till the last. We'll have more videos. I'll try to go till 35 sets, and Snapchat के लिए भी strategy session होंगे. Not by me, but by someone who has really cracked it. So I'm hopeful that will be helpful to you as well. So again, thank you so much for spending your time with me, and I'll see you in the next one. Till then, bye bye.